Good morning, students. Today we are going to start our new topic, which is to find the LCM of the given number. Now, what is the LCM? We have studied about the LCM in the worksheet number 4. LCM stands for the lowest common multiple. Okay, you have to find the lowest common multiple between the given number. So, to find the LCM of the given number, actually we have total 3 methods to find the LCM. Okay, you have studied the first method in worksheet number 4. The first method is by listing the multiples. Okay, you had to solve the such type of questions to find the LCM by listing the multiple in worksheet number 4. Okay, in worksheet 4 we have found the LCM. First of all, we write the multiples, then we write their common multiple, and then we find their lowest common multiple. Okay, now we have another method to find the LCM here. Okay, so let us start to find the LCM of the given number by prime factorization, that is method number 2. Now this is your worksheet number 10. Question number 1. Question number 1 in the form of a fill in the blanks, लेकिन आपको ये क्वेश्चन अपने नोटबुक पे ही इसको राइट करना है, क्योंकि ये लेंथी बन जाता है, बुक पे ये नहीं हो पाएगा. वी हैव गिवन 2 नंबर. बेटा एलसीएम आता है, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकालना होता है. तो आपको यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हैं. फर्स्ट इज़ 15 एंड सेकेंड इज़ 90. ओके, अगर इसका एलसीएम पूछा है तो हमारे पास एक मेथड हमने पहले पढ़ लिया है बाय लिस्टिंग द मल्टीपल, लेकिन वो लेंथी बन जाता है. नाउ देयर इज अ सेकंड मेथड विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ हाउ विल यू फाइंड द एलसीएम द गिवन नंबर. सो नाम है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. तो मतलब आपको जो नंबर पहले दिए हैं, आपने सबसे पहले उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं अलग अलग. ओके, जैसे पहले 15 के, तो 15 के फैक्टर्स क्या आएंगे, कौन से फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर. तो वी विल डिवाइड द गिवन नंबर बाय प्राइम नंबर्स. आपके प्राइम नंबर्स हैं, फर्स्ट इज 2, 3, 5, ओके, 7, 11, 13, 17, 23 and so on. Okay, these prime number are very important. Okay, now first is 15. Now 15 first prime number is 2. When we divide 15 by 2, we get the 15 is not completely divisible by 2. Okay, we get the remainder here 1. It means 15 is not completely divisible by 2. So we take the next prime number, which is 3. If we divide the given number by 3, we get here quotient 5 and remainder 0. Okay, it means 15 is completely divisible by 3. ये 15 जो है वो 3 से completely divisible हो रहा है, तो we will divide it by 3. When we divide, we get the quotient 5. तो we write here quotient 5. Okay, कैसे बताया था आपको, 15 डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो quotient आया 5. तो quotient यहाँ अपने सेकंड रो में लिखना है. नाउ योर न्यू नंबर इज़ 5. नाउ 5 इज़ योर प्राइम नंबर, और मैंने बताया है कि प्राइम नंबर आर डिविजिबल बाई द नंबर बाई इटसेल्फ. ये अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं. तो 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से ही. तो व्हेन वी डिवाइड 5 बाई 5, वी गेट द कोशेंट 1. तो कोशेंट आया 1 और रिमाइंडर आया 0. अब यहाँ पे लास्ट में देखो 1 आ गया, तो मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं. तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द 15? कौन से फैक्टर प्राइम फैक्टर, 3 and 5. to be write in the product form, that is 3 into 5. Okay, 3 into 5. Now the second number is 90. Again do the factors of the 90. So 90 is your even number, so it is divisible by 2. When we divide by 2, we get the quotient 45. आपने डिवाइड करके देखना है 90 को 2 से, आपका क्वोशेंट आएगा 45. तो बी राइट द क्वोशेंट. Now 45 is your odd number. It means it is not divisible by 2. So we take the next prime number, which is 3. When we will divide it by 3, we get the quotient 15. Okay, when 45 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्वोशेंट आएगा आपका 15 और रिमाइंडर बनेगा 0. मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से. तो क्वोशेंट आया 15. तो वी राइट द क्वोशेंट 15 in your third row.
नाउ 15 अगेन 15 इज डिविजिबल बाई 3। हम नेक्स्ट प्राइम नंबर में तब तक नहीं जाएंगे कि वो उसे डिवाइड, जैसे 15 है अगर 3 से डिवाइड हो तो हम इसको 3 से ही डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो व्हेन वी डिवाइड इट बाई 3 वी गेट द क्वोशिएंट 5 एंड रिमाइंडर 0, मतलब 15 जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वी राइट द क्वोशिएंट 5। Okay, now 5 is your prime number, so it is divisible by 5. When we divide 5 by 5 we get the 1. Okay, so these are the factors of the prime factors of the 90. What is the factors? First is 2, 3, 3 and 5. So we write in the product form here. अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो आपने पीछे पढ़ा है, अब यहाँ पे नई चीज़ क्या है, एलसीएम कैसे निकलता है। वी राइट द फैक्टर्स ऑफ द 15 के फैक्टर्स लिखे हमने, लिखे हैं 3 इंटू 5, ओके, प्राइम फैक्टर्स, और 90 के लिखे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, जो स्टेप अभी आएगा एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलता है, अब देखो एलसीएम कैसे निकलता है। अब आप दोनों के फैक्टर्स देखेंगे तो उनमें कॉमन कुछ फैक्टर जो कॉमन है, मतलब कॉमन मतलब दोनों में आ रहे हैं। जैसे 3 जो है 15 में भी का भी फैक्टर है और 90 का भी फैक्टर है, ठीक है। तो इसको आप सर्कल कर लो, जो कॉमन फैक्टर है उसको सर्कल कर लो। और कोई कॉमन है, हाँ 5 देखो इसमें भी है, 15 का फैक्टर भी है और 90 का भी है, तो 5 को भी आप वी डू द सर्कल द 5 आल्सो, ओके। जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको आपने सर्कल कर लिया। सर्कल क्यों किया, क्योंकि यहाँ जब आप एलसीएम लिखेंगे तो ये जो कॉमन फैक्टर हैं ये सिंगल टाइम लिखे जाएंगे, ओके। ये जो 3 है, ये 3 देखो दोनों में कॉमन है, 5 भी कॉमन, जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो आपने सिंगल टाइम राइट करने हैं। तो देखो 3 कॉमन है तो वी राइट 3 सिंगल टाइम इनटू 5 भी देखो कॉमन है दोनों में, तो 5 भी आप कॉमन सिंगल टाइम राइट करेंगे इनटू, और जो जिनके ऊपर सर्कल नहीं लगा है वो आपको आगे लिख देने हैं। किनके ऊपर सर्कल नहीं लगा है, 2 के ऊपर सर्कल नहीं लगा है और 3 के ऊपर, तो आपने उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में साथ में लिख देना है 2 इंटू 3। अब आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा जब आप इन तीनों का चारों नंबरों का प्रोडक्ट निकालेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप 3 को पहले 5 से करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और 2 और 3 को कर लेते हैं, मैंने 3 और 5 को आपस में इंटू कर लिया, 2 और 3 को आपस में इंटू कर लेते हैं, 2 और 3 को करेंगे तो 6 आएगा। अब आपने 15 और 6 को लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना आएगा आपका 90। तो एलसीएम ऑफ द 15 एंड 90 इज 90। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको फैक्टर्स करने हैं पहले। तो वी राइट द फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, जो दोनों नंबर हैं उनके फैक्टर्स राइट करेंगे, ठीक है। फिर आपने जो कॉमन फैक्टर है दोनों, कॉमन मतलब जो दोनों में है उनको सर्कल कर लेना है। सर्कल क्यों किया, क्योंकि ये सिंगल टाइम लिखे जाएंगे कॉमन जो है। देन हाउ विल यू राइट द फैक्टर्स, तो आपके देखो कॉमन आया 3 के ऊपर सर्कल, तो वी राइट हियर 3, वी राइट हियर 3, और एक कॉमन है 5 को लिखा है उसके बाद इनटू के फॉर्म में इनटू, और जो उनके ऊपर सर्कल नहीं लगा है आपने उनको लास्ट में लिख देना है प्रोडक्ट की फॉर्म में, दैट इज 2 इंटू 3। अब सभी का आपने प्रोडक्ट ले लेना है, जो प्रोडक्ट आएगा वो इनका एलसीएम है, ओके। लेट अस टेक द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। given number is 18 and 24, so you have to do the first of all factors of the 18 and 24. Now factors of the 18 are 2 into 3 into 3, okay। 18 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे प्राइम फैक्टर्स वो आएंगे 2 into 3 into 3, and the factors of the 24 are 2 into 2 into 2 into 3. Now you have to find the LCM. So first of all we take the common multiples, common factors। कॉमन है इसमें देखो 2 आ रहा है और एक 3, तो वी राइट टेक द कॉमन ऑफ द फैक्टर्स, वी राइट द कॉमन क्यों सर्कल क्यों लगाएंगे, जो कॉमन फैक्टर हैं आपके उनको आपने सिंगल टाइम राइट करना है, दैट इज़ 2, ओके। यहाँ से 2 आया और यहाँ से 3 इंटू 3, ये तो कॉमन आ गए, और उसके बाद इनटू जो आप जिनके ऊपर सर्कल नहीं लगा मतलब जो कॉमन नहीं है वो अपने सभी फैक्टर्स राइट कर देने साथ में, इनटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ओके। ये 3 देन 2 एंड 2, ओके। जो कॉमन आएंगे वो सिंगल टाइम राइट करने हैं आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में, और उन्हीं के साथ उनका प्रोडक्ट लेना है जो कॉमन नहीं है, जिनके ऊपर सर्कल नहीं लगा है, तो उन सभी का प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा आपका एलसीएम,
ओके जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा इन सभी नंबर का 2 इंटू 3 आएगा 6, 3 इंटू 2 इंटू 2 आएगा आपका 12, तो 12 इंटू 6 72. सो योर LCM इज 72. Okay, so similarly the C part, the LCM is 75. Okay, now dear students, you have to solve the remaining part, that is part D of the question number 1, and in next video we will find the LCM of the given number which are the question number 2, but we use the third method to find the LCM, which is common division method. Okay, thank you.